Good morning everyone and welcome to the class. We are doing the chapter 2 in history and the name of the chapter is From Trade to Territory. Under this chapter we were discussing how the East India Company started trade in India. Their base was Bengal, and we have seen in the previous classes how conflict arose between the Nawab of Bengal and the East India Company, which led to the Battle of Plassey, in which battle the Nawab of Bengal, Sirajuddaulah, was defeated. And then we have seen that the company tried to install a puppet Nawab, but it was not successful in this effort. Mir Jafar was made the Nawab of Bengal by the company. Then when Mir Jafar protested, then Mir Qasim was made the puppet ruler, but he was also not playing the role of the puppet Nawab in a proper way according to the wishes of the company. That is why again Mir Jafar was reinstalled after the Battle of Buxar in 1764, and then we see that Mir Jafar was died in 1765, and then the company decided that it itself will become the Nawab of Bengal, and the Mughal emperor gave Diwani of Bengal to the East India Company. And in this way we see that Robert Clive, he becomes the governor of the Bengal, and we have also seen that how much property, how much wealth he made in India. And when he went back to England, there was corruption charges against him. He was cross-examined in British Parliament in the year 1772, though he was acquitted by the Parliament. Still we see that in the year 1774 he committed suicide. And in this way now we are moving to this portion ki how the company is now expanding its rule. Company rule expands. जो कंपनी का रूल अभी तक सिर्फ बंगाल में है, अब कंपनी बंगाल से आगे एक्सपैंड करती है. एंड ये जो एक्सपेंशन होता है, ये जो इंडियन टेरिटरी को कंपनी एनेक्स करने का काम करती है, वो डायरेक्ट मिलिट्री अटैक नहीं करती है. कंपनी कहीं भी कभी भी, बहुत रेयर केसेस में ही ऐसा हुआ कि डायरेक्ट मिलिट्री अटैक हुआ. इन जनरल कंपनी ने बहुत कई तरह के तरीके अपनाए, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, इन ऑर्डर टू एक्सटेंड इट्स रूल इन इंडिया. और इसी में एक तरीका जिसको हम लोगों ने वी वर डिस्कसिंग इन द प्रीवियस क्लास, that after this battle of Buxar, what happened, that the company started to appoint residents. The company started to appoint residents in Indian states. These residents were the agent of company. These residents were agents of कंपनी. ये कंपनी के एजेंट थे. और इनका काम क्या था? ये रेसिडेंट्स इंडियन जो राजा होते थे, नवाब थे, उनके कोर्ट में रहते थे. एंड इनका काम था कि कंपनी के इंटरेस्ट को सर्व करना, कंपनी के इंटरेस्ट को आगे बढ़ाना. ठीक है. और इस तरह से हम देखते हैं कि जो रेसिडेंट थे वो they started to interfere in the internal affairs of Indian states, क्योंकि वो हर राजा
का जो भी टेरिटरी था, जो उसमें हर एक इंडियन स्टेट में रेसिडेंट्स इन्होंने अपॉइंट कर रखा था. एंड द एम ऑफ रेसिडेंट वाज टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, टू एनहांस द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी. तो इस काम को करने के लिए these residents started to interfere in the political affairs of the Indian states, in the internal affairs of the Indian state. और वो ये डिसाइड करने लगे, ये रेसिडेंट्स की एक पर्टिकुलर जो राजा है उसके बाद कौन उसका सक्सेसर बनेगा, हु विल बी द सक्सेसर टू द थ्रोन. जिस राजा जो गद्दी पर बैठा है, राजा के बाद कौन उसका उत्तराधिकारी बनेगा, कौन सक्सेसर बनेगा राजा का. इन बातों में उनकी इन्वॉल्वमेंट होने लगी और कई बार कुछ ऐसे भी अलायंसेस भी किया कंपनी ने. इस तरह के जो अलायंस कंपनी ने किया उसको हम कहते हैं सब्सिडियरी अलायंस. Subsidiary alliance. What does it mean? कंपनी जो है वो कुछ जो राजा थे उनके साथ सब्सिडियरी अलायंस करती थी, ठीक है. और इसके लिए जो राजा थे अगर वो विलिंगली नहीं भी इस अलायंस के पार्ट बनना चाहे तो उनको फोर्स किया जाता था. Many times the kings were forced to go into a subsidiary alliance. ठीक है. इस अलायंस का मतलब क्या था? ये अलायंस किसके बीच हो रहा है? दिस अलायंस इज बिटवीन द दिस ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द किंग और नवाब, जिस नाम से भी उनको जाना जाए, जो भी राजा था इंडियन स्टेट्स के, उनके बीच में ये अलायंस था. इस अलायंस का मतलब ये था कि इंडियन जो रूलर्स थे उनको, अगर उन्होंने ये अलायंस कर लिया तो इसका मतलब ये है कि द रूलर्स वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्मी. वो अपनी इंडिपेंडेंट आर्मी नहीं रख सकते थे. रूलर्स वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्मी. उनको प्रोटेक्शन की अगर जरूरत, प्रोटेक्शन की तो जरूरत थी ही, दे विल बी प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी. आपने अगर कंपनी के साथ सब्सिडियरी अलायंस किया तो आप अपनी आर्मी नहीं रख सकते, अपनी इंडिपेंडेंट आर्म फोर्सेस आप नहीं रख सकते हैं. यू विल बी प्रोटेक्टेड, योर स्टेट विल बी प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी. The responsibility of the protection of your state is on the company, but because you are protected by the company, so you will have to pay some amount, some money to the company, because you are protected by the company forces, which were called subsidiary forces. ठीक है. जिस भी राजा ने सब्सिडियरी अलायंस कंपनी के साथ किया, उसका ये मतलब हो रहा है कि राजा जो है वो अपनी आर्म फोर्सेस नहीं रख सकता है, बल्कि राजा का प्रोटेक्शन, राजा को कौन प्रोटेक्शन देगा? राजा विल बी, द किंग विल बी गिवन प्रोटेक्शन बाय, द किंग विल बी गिवन प्रोटेक्शन बाय द कंपनी. सब्सिडियरी फोर्स होती है कंपनी की इसी पर्पज से प्रोटेक्शन देने के लिए, लेकिन प्रोटेक्शन के बदले में आपको कंपनी को कुछ पैसे पे करने होंगे, क्योंकि कंपनी को अगर आपको प्रोटेक्शन देना है तो उसके लिए वो सब्सिडियरी फोर्स मेंटेन किया हुआ है जिसमें उसको खर्च होगी, है ना. तो वो खर्च वो उसको कौन देगा? वो खर्च दैट मनी विल बी प्रोवाइडेड बाय द इंडियन स्टेट्स, इंडियन किंग्स. ठीक है. तो ये था सब्सिडियरी अलायंस. आगे अभी और भी बातें हैं. बात ये है कि सपोज करो किसी किंग ने सब्सिडियरी अलायंस कर लिया कंपनी के साथ, तो अब वो अपनी आर्म फोर्सेस तो रखेगा नहीं. नाउ हिज स्टेट विल बी प्रोटेक्टेड बाय द सब्सिडियरी फोर्स, और इस सब्सिडियरी फोर्स के बदले में उसको कंपनी को पैसे पे करने हैं. लेकिन
सपोज किसी समय कुछ ऐसे कंडीशंस हुए कि जो इंडियन रूलर है वो कंपनी को पैसे पेमेंट नहीं कर पाए ड्यू टू सम रीजन, द इंडियन रूलर इफ द इंडियन रूलर फेल्स टू मेक द पेमेंट, देन व्हाट विल हैपन? तब क्या होगा अगर हम कंपनी को पैसे देने नहीं दे पाए, हमारे पास पैसे ही नहीं है, हम नहीं दे पा रहे हैं पैसे, तो क्या होगा? जो कंपनी होगी वो पेनल्टी के तौर पे कि आपने पैसे आपको देने थे, आपने नहीं दिए, तो आप पर पेनल्टी लगती है। पेनल्टी क्या लगेगी? पेनल्टी ये लगेगी कि जो राजा है उसकी जो टेरिटरी है उस टेरिटरी का एक पार्ट जो है वो कंपनी ले लेगी अपने पास। ठीक है, तो इफ द इंडियन रूलर फेल्स टू मेक द पेमेंट, देन इन दैट सिचुएशन part of their territory will be taken away by the company as penalty। ठीक है, उसकी टेरिटरी का एक पार्ट कंपनी ले लेगी ये कह के कि आपने पैसे पेमेंट नहीं किए तो आप पे पेनल्टी लगती है, आपके पास पैसे नहीं है तो हम आपकी टेरिटरी ले लेंगे। तो दिस वाज वन ऑफ द वेरियस वेज टू अनेक्स द टेरिटरी ऑफ इंडियन स्टेट्स बाय द कंपनी। कंपनी ने बहुत सारे हथकंडे अपनाए थे इंडियन रूलर्स की टेरिटरी को लेने का। उसी में से एक जो हथकंडा जिसको हम कहेंगे, जो उपाय, जो तरीका था, दैट वाज सब्सिडियरी अलायंस। इसी सब्सिडियरी अलायंस करके उन्होंने ऐसे अलायंस कर करके कई सारे टेरिटरीज को लिया था। ऐसा हुआ था जबकि रिचर्ड वेलेस्ली वॉज द गवर्नर जनरल। ठीक है, और तब नवाब, अवध के जो नवाब थे उनके साथ ये था इनका सब्सिडियरी अलायंस था। ठीक है, रिचर्ड वेलेस्ली वॉज द गवर्नर जनरल एट दैट टाइम। जो अवध के नवाब थे उनके साथ सब्सिडियरी अलायंस हुआ था। ठीक है, और इसमें हम क्या देखते हैं कि सब्सिडियरी अलायंस अवध के नवाब के साथ की गई थी, लेकिन द नवाब वाज नॉट एबल टू पे द अमाउंट, और जब वो अमाउंट पे नहीं कर पाए थे तो उनकी आधे से भी ज़्यादा टेरिटरी जो है वो कंपनी ने एनेक्स कर लिया था 1801 में। मोर देन हाफ जो उनकी वो थी टेरिटरी थी अवध के नवाब की, उसको कंपनी ने ले लिया एज अ पेनल्टी, क्योंकि उन्होंने सब्सिडियरी फोर्स के बदले में पेमेंट वो कंपनी को नहीं कर पाई। ठीक है, और हैदराबाद जो है उसको भी इसी तरह के ग्राउंड्स पे हैदराबाद की भी टेरिटरी जो है वो कंपनी ने ले ली थी। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स हाउ सब्सिडियरी अलायंस वाज यूज्ड बाय द कंपनी टू अनेक्स द इंडियन टेरिटरी। एग्जाम्पल अवध का आधे से ज़्यादा पार्ट ले लिया था, और हैदराबाद का भी एक पार्ट जो है वो इन्होंने कंपनी ने ले लिया था इसी ग्राउंड पे। ठीक है, तो ये एक तरीका था। एक तो रेसिडेंट्स को रख करके उनके इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करते थे कंपनी वाले, देन सब्सिडियरी अलायंस करके उनको इस तरह का सिचुएशन क्रिएट होता था कि उनकी टेरिटरी ले ली जाती थी। इसके अलावे हम और भी तरीके देखते हैं जिससे कि इस तरह का जो लेने का जो तरीका था कि कैसे उनके टेरिटरी को लिया जाए, इसमें और भी तरीके थे, जैसे क्लेम टू पैरामाउंसी था जिसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था। दीज वर द वेरियस वेज थ्रू विच द ब्रिटिश ट्राइड टू एनेक्स द इंडियन टेरिटरी। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे द क्लेम टू पैरामाउंसी, हाउ द कंपनी वॉज एक्सपैंडिंग इट्स रूल through subsidiary by appointing residents in the Indian states, then by
by going in this subsidiary alliance. And now the third one is the claim to paramountcy. ठीक है, अब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। कंपनी जो है वो धीरे धीरे अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन जो है वो करती जा रही थी। ठीक है, इसमें कुछ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशंस भी हुए थे, उसको हम अभी डिस्कस करेंगे। बट पहले हम उन तरीकों को डिस्कस कर रहे हैं जो कि डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन वाला नहीं था, जिसमें कोई डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन नहीं लेकर के इस तरीके से काम किया गया था। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि लॉर्ड हेस्टिंग्स जो कि गवर्नर जनरल थे इंडिया के फ्रॉम 1813 टू 1823, लॉर्ड हेस्टिंग्स फ्रॉम 1813 टू 23, जो लॉर्ड हेस्टिंग्स थे वो उन्होंने एक नई पॉलिसी अडॉप्ट की थी। इट वाज नोन एज पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटसी। ठीक है, अब कंपनी जो थी वो क्या क्लेम करती थी? इट स्टार्टेड टू क्लेम अंडर लॉर्ड हेस्टिंग्स बिटवीन 1813 टू 1823 दैट द अथॉरिटी ऑफ द कंपनी वाज पैरामाउंट। पैरामाउंट मीन्स सुप्रीम। पैरामाउंट मीन्स सुप्रीम। इसका ये मतलब था कि कंपनी की जो अथॉरिटी है वो सुप्रीम है, कंपनी सबसे ऊपर है, कंपनी के ऊपर कोई भी नहीं है। ठीक है, और इसकी जो पावर है वो इंडियन स्टेट से ज़्यादा ये पावरफुल है। जो इंडिया के जो राजा हैं उन सब से ये ज़्यादा पावरफुल है। Its power was greater than the power of Indian states. और ये it was justified। अगर ये इंडियन टेरिटरीज को अनेक्स कर रही है, इंडियन राजा जो हैं उनके जो किंगडम्स हैं उनको अगर ये अनेक्स कर रही है तो ये कोई गलत नहीं कर रही है, क्योंकि इसकी अथॉरिटी सुप्रीम है। इंडियन स्टेट से ये कहीं ज़्यादा ऊपर इसका पोजीशन है। एंड बिकॉज ऑफ दैट सुप्रीम पोजीशन इट इज जस्टिफाइड इन अनेक्सिंग इंडियन किंगडम। मतलब इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, देयर इज नो लॉजिक बिहाइंड इट। हाँ, इनका ये कहना है कि हम सुप्रीम हैं, हम मतलब द कंपनी, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इज द सुप्रीम। उनके जो पावर है वो इंडियन राजा की पावर से ज़्यादा है, इसलिए बिकॉज ऑफ दैट दे हैव द अथॉरिटी टू अनेक्स देयर टेरिटरी, दे हैव द अथॉरिटी टू ऑक्यूपाई देयर टेरिटरी। जो टेरिटरी इंडियन राजा की है उस टेरिटरी को हम अपने टेरिटरी में मिला सकते हैं, क्योंकि हम आपसे सुप्रीम हैं। तो इट इज सिंपली, जिसको हम कहेंगे मिसयूज ऑफ पावर, है ना। तो ये जो व्यू था ये बाद में भी जो गवर्नर जनरल्स आए उनकी भी पॉलिसी को इसने गाइड किया कि हम सुप्रीम हैं, इसलिए हम आपके टेरिटरी को अनेक्स कर सकते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि जो इंडियन किंग्स थे उन्होंने इस पॉलिसी को अपोज नहीं किया, इसको चैलेंज नहीं किया। द इंडियन रूलर्स चैलेंज्ड दिस पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटसी। इसका एग्जाम्पल हमें मिलता है जब ब्रिटिश ने एक छोटे से स्टेट था कर्नाटका में, आज का कर्नाटका में एक छोटा सा स्टेट था, उसका नाम था कित्तूर। ठीक है, जब उस कित्तूर
स्टेट को ब्रिटिश जो है वो एनेक्स करना चाहते थे, मिलाना चाहते थे, तो रानी चन्नम्मा वहाँ पर थी किटूर में। रानी चन्नम्मा ने आर्म्स उठा लिया और एक एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंस मूवमेंट चलाया कि हम ब्रिटिश को अपने टेरिटरी को एनेक्स नहीं करने देंगे, हम अपने आप को उनसे नीचा नहीं समझते हैं, हम उनसे लड़ेंगे, है ना। आप हमारी टेरिटरी को सिर्फ ये कह के कि आप हमसे ज़्यादा पावरफुल है, हमारी टेरिटरी को एनेक्स कर सकते हैं, हम ऐसा नहीं मानते हैं। उन्होंने आर्म्स उठा लिया और एक एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंस मूवमेंट भी चलाया। दो सी वॉज अरेस्टेड इन 1824 एंड प्रिजन में ही उनकी डेथ हो जाती है 1829। लेकिन उनके डेथ के बाद, मतलब जब वो पकड़ ली जाती हैं, अरेस्ट कर ली जाती हैं, तो उस समय क्या होता है, रयन्ना एक चौकीदार था किटूर का ही। किटूर में एक पर्टिकुलर जगह थी संगोली, उस संगोली में ही वॉज अ चौकीदार रयन्ना। जो रयन्ना ने उनके रेजिस्टेंस को, चन्नम्मा के रेजिस्टेंस को रयन्ना ने आगे बढ़ाया और उसको लोगों का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। ही गॉट द सपोर्ट ऑफ द पीपल एंड ही वॉज सक्सेसफुल इन डिस्ट्रॉइंग मेनी ब्रिटिश कैंप्स एंड रिकॉर्ड्स। बहुत ब्रिटिश को उसने नुकसान भी पहुंचाया, लेकिन लास्ट में ही वॉज कॉट एंड ही वॉज हैंग्ड बाय ब्रिटिश इन 1830। उनको फांसी पे चढ़ा दिया गया। तो इस तरह के रेजिस्टेंस जो है वो हुए। ऐसी नहीं बात है कि आपने कह दिया कि हम पैरामाउंट हैं, हमारी अथॉरिटी सुप्रीम है, हम आपको एनेक्स करने में जस्टिफाइड है, तो हर किसी राजा ने सिर झुका के आपके पैरामाउंसी को एक्सेप्ट कर लिया, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पर जो किटूर का हुआ उसको मैं लिख रही हूँ सो दैट यू शुड बी एबल टू मेमोराइज थिंग्स, क्योंकि इसमें कुछ थोड़े से नाम हैं इस तरह के कि आपको याद करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले किस जगह की हम लोग बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट किटूर। ये किटूर आज के समय में कहाँ पर है, आज के समय में ये कर्नाटका में है, ठीक है। अब ये जो किटूर है इसमें कौन थे रूलर बस रानी चन्नम्मा। ठीक है, सी वॉज रानी चन्नम्मा, CHANNAMMA। अब रानी चन्नम्मा, सी वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द पैरामाउंसी ऑफ द किंग and what she did, she started an anti-British resistance movement. Anti-British resistance movement. उन्होंने एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंस मूवमेंट चलाया, बट सी वॉज अरेस्टेड इन 1824 और 1829 में उनकी डेथ भी हो जाती है ना। सी वॉज अरेस्टेड इन 1824 एंड सी डाइड इन प्रिजन इटसेल्फ इन 1829, है ना। और इसके बाद क्या होता है, उनके जब वो अरेस्ट कर ली जाती है उसी समय उनका चौकीदार, उनके किटूर का ही एक संगोली नाम की जगह का एक बहुत ही पुअर चौकीदार था, हिज नेम वाज रयन्ना, ठीक है, रयन्ना द चौकीदार। चौकीदार ऑफ संगोली, ओके, संगोली नाम की जगह का ये चौकीदार था। और इन्होंने क्या किया कि जो चन्नम्मा ने जिस रेजिस्टेंस को स्टार्ट किया था उसको उन्होंने आगे बढ़ाया। ही गॉट द सपोर्ट ऑफ द पीपल ऑल्सो एंड ही वॉज very much successful in destroying many British camps and records. But again, he was also caught and he was hanged in the year 1830.
1830 में उनको हैंग कर दिया जाता है, फांसी पे चढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो दिस इज द स्टोरी ऑफ किटूर। तो क्या है, पैरामाउंटसी की पॉलिसी तो आपने दी, लेकिन एक छोटा सा किटूर, बहुत ही छोटा किंगडम था, उसमें उसने आपके पैरामाउंटसी को मानने से इनकार कर दिया। क्यों मानेंगे हम आपकी पैरामाउंटसी? आखिर हम, आप जहाँ के भी राजा हो, जहाँ के भी आप पावरफुल हो, आप अपनी जगह पे जाइए, ये हमारा जगह है, ये दिस प्लेस बिलोंग्स टू अस। आपको किसने अथॉरिटी दी यहाँ आके हम पे रूल करने की, है ना? तो एक छोटे से टेरिटरी, छोटे से किंगडम की रानी ने उसके अगेंस्ट आवाज उठाई। और ये देखिए सबसे बड़ी बात कि जब उस रानी को अरेस्ट कर लिया जाता है तो उनका चौकीदार, बहुत ही पुअर चौकीदार, मतलब देखा जाए तो वो कोई राजा नहीं था, वो एक बहुत ही छोटा सा पोस्ट होल्डर था, चौकीदार। उसने ये रेजिस्टेंस मूवमेंट चलाया ब्रिटिश के अगेंस्ट। तो कहाँ है आपकी पैरामाउंटसी? पैरामाउंटसी हम नहीं मानेंगे तो नहीं है पैरामाउंटसी, है ना? आपके कहने से आपकी पैरामाउंटसी नहीं एस्टैब्लिश हो जाती है, हम आपकी पैरामाउंटसी को नहीं एक्सेप्ट करते। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स है कि कैसे पैरामाउंटसी को चैलेंज किया गया, कि टूर में ये हुआ। इसी तरह से एक और पॉलिसी, जैसे हमने ये पैरामाउंटसी की पॉलिसी को जैसे हमने देखा, उसी तरह से एक और पॉलिसी थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो कि लॉर्ड डलहौजी, जो कि गवर्नर जनरल इंडिया के थे, उन्होंने, लॉर्ड डलहौजी ने इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को दिया था। लॉर्ड डलहौजी जो थे वो गवर्नर जनरल इंडिया के रहे थे 1848 से 1856। इस दौरान ही ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स उन्होंने प्रेजेंट किया था। ठीक है, तो अब हम लोग उस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को देखेंगे। वी आर सीइंग कि हाउ द कंपनी इज एक्सपैंडिंग इट्स रूल इन इंडिया and what were the different types of different methods adopted by the company to expand its rule. The company was not very much involved in direct military operations, military attacks हुआ था, वो भी हुआ था, हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग कि जो वेरियस मेथड्स उन्होंने वेरियस पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक मेथड्स अडॉप्ट करके उन्होंने जो इंडियन टेरिटरी को एक्वायर किया, एनेक्स किया, उसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इसमें हमने देखा कैसे रेसिडेंट्स को अपॉइंट करके इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करना स्टार्ट करते हैं, कैसे सब्सिडियरी अलायंस करके वो इंडियन टेरिटरी को ऑक्यूपाई करते, जिसका एग्जांपल अवध और हैदराबाद है। देन वी हैव सीन कि उन्होंने पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटसी दी कि हम सबसे पावरफुल है, हम सबसे सुप्रीम है, इसलिए हम आपके टेरिटरी को एनेक्स कर सकते हैं। वी आर जस्टिफाइड इन एनेक्सिंग योर टेरिटरी बिकॉज वी आर मोर पावरफुल देन यू। और इसको किस तरह से चैलेंज किया गया कि टूर में हमने उसको देखा है। ठीक है, यहाँ तक हमने डिस्कस किया। अब हम क्या देख रहे हैं, एक नई पॉलिसी आई थी, कंपनी ने अपने रूल को एक्सपैंड करने के लिए एक न्यू पॉलिसी अडॉप्ट की थी, और इस पॉलिसी का नाम था पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन, द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ओके, अब ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने दिया था? दिस डॉक्ट्रिन वाज गिवन बाय लॉर्ड डलहौजी। अब ये लॉर्ड डलहौजी जो थे, ये कब इंडिया के गवर्नर जनरल थे? ही वाज गवर्नर जनरल फ्रॉम 1848 टू 1856। ठीक है, और इस दौरान इन्होंने ये डॉक्ट्रिन दिया। इस डॉक्ट्रिन के कारण बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन आया, न सिर्फ राजाओं में बल्कि पॉपुलर डिससेटिस्फैक्शन, लोगों का भी डिससेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा। इस डॉक्ट्रिन में ये कहा गया कि अगर कोई इंडियन रूलर
डेथ हो जाती है विदाउट अ मेल हेयर के बिना, अगर किसी इंडियन रूलर की डेथ हो जाती है तो उसका जो किंगडम है, दैट किंगडम विल लैप्स एंड दैट किंगडम विल बिकम अ पार्ट ऑफ कंपनी टेरिटरी, क्योंकि उसके पास कोई मेल हेयर नहीं है। HEIR, हेयर का मतलब जो उत्तराधिकारी, सक्सेस है। जैसे किसी राजा को अगर बेटा नहीं है, ठीक है, अपना बेटा नहीं है, बायोलॉजिकल सन नहीं है, तो वो उसकी टेरिटरी खत्म हो जाएगी। वो किसी से अडॉप्टेड बच्चा को वो अपनी गद्दी पर नहीं बैठा सकता है। अगर उसका अपना बच्चा है, मेल हेयर है, तब वो उसकी होगी, अदरवाइज उसके डेथ के बाद उसकी टेरिटरी को ले लिया जाएगा। दिस इज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसी को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।